Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Am I audible, Prabhu? Yes, Mataji. Yes, Mataji. Only your video is off, Mataji. Okay, because I'm having some issue in the connection. I think network is. I was having trouble in joining in. So let me see if the network is okay. Then I'll switch on my video, Prabhu. Okay, Mataji. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Namom Vishnu Padhaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkripa tamam mande Shri Gurun Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Krishna Chaitanya Ishwaram Hari Om Tat Sat. हरे कृष्णा। तो आज की भगवद गीता सत्र में भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद। आज हम लोग 5.16, 17, 18 वर्सेस कवर करेंगे। टेक्स्ट 16। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5.16 ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। Translation by His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. When, however, one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. We'll read the सब तीनों का translation पढ़ते हैं, फिर ओके अभी स्क्रीन शेयर किया आपने प्रभु, ठीक है। फिर से एक बार श्लोक पढ़ते हैं। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। Translation by Srila Prabhupada ki jai. When, however, one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. Purport by His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Those who have forgotten Krishna must certainly be bewildered, but those who are in Krishna consciousness are not bewildered at all. It is stated in the Bhagavad Gita, Sarvam Jnana Pradena Jnanagni Sarva Karmani,
and nahi jnanena sadrisham. Knowledge is always highly esteemed. And what is that knowledge? Perfect knowledge is achieved when one surrenders unto Krishna, as is said in the 7th chapter, 19th verse. Bahunam janmanamante jnanavan mam prapadyate. After passing through many births, when one perfect in knowledge surrenders unto Krishna, or when one attains Krishna consciousness, then everything is revealed to him as everything is revealed by the sun in the daytime. The living entity is bewildered in so many ways. For instance, when he unceremoniously thinks himself God, he actually falls into the last snare of nescience. If a living entity is God, then how can he become bewildered by nescience? Does God become bewildered by nescience? If so, then nescience or Satan is greater than God. Real knowledge can be obtained from a person who is in perfect Krishna consciousness. Therefore, one has to seek out such a bona fide spiritual master and under him learn what Krishna consciousness is. For Krishna consciousness will certainly drive away all nescience, as the sun drives away darkness. Even though a person may be in full knowledge that he is not this body, but is transcendental to the body, he still may not be able to discriminate between the soul and the super soul. However, he can know everything well if he takes care to take shelter of a perfect bona fide spiritual master. One can know God and one's relationship with God only when one actually meets a representative of God. A representative of God never claims that he is God, although he is paid all the respect ordinarily paid to God because he has knowledge of God. One has to learn the distinction between God and the living entity. Lord Sri Krishna therefore stated in the 2nd chapter 2.12 that every living being is individual and that the Lord is also individual. They were all individuals in the past, they are individuals at present, and they will continue to be individuals in the future, even after liberation. At night, we see everything as one in the darkness, but in the daytime, when the sun is up, we see everything in its real identity. Identity with individuality in spiritual life is real knowledge. So, इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जैसा सूर्य अंधकार को मिटाता है, वैसा ही ज्ञान जो है, नॉलेज और ज्ञान जो है, वो अज्ञानता का अंधकार को मिटाता है. और प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से तात्पर्य में बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं. तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स प्रभुपाद इस पॉइंट से बता रहे हैं. पहली बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसा सूर्य अंधकार को मिटाता है, वैसा ज्ञान जो है वो अज्ञानता को मिटाता है, लेकिन इसको आसानी से लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान बताते हैं, भगवत गीता में भगवान बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः. बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत बहुत जन्म के बाद दुर्लभ से कोई ये पहचान पाता है कि भगवान जो है, कृष्ण जो है वही भगवान है, और हमको क्या करना चाहिए, भगवान का शरणागति करना चाहिए. वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः. वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव यानी वासुदेव कृष्णा, जो वसुदेव की पुत्र है कृष्णा, वो ही सर्वमिति मतलब सब जगह में वही है. वो भगवान बताते हैं ना, सूत्रे मणि गणा इव करके, सब में मैं हूँ लेकिन मैं सब में नहीं भी हूँ, ऐसा बताते हैं भगवान. तो इसको समझना बहुत मुश्किल है. इसीलिए प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि बहुत बहुत जन्म के बाद जब हम बहुत सारी सुकृति इकट्ठा करते हैं, तभी हम हमारी चित्त में ये समझ आता है कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है. मुझे क्या करना चाहिए, भगवान वासुदेव की पूजा आराधना करना चाहिए. वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, इनको क्या बताया गया है, महात्मा मतलब जो सामान्य व्यक्ति नहीं है, जो महात्मा है, जो बहुत दुर्लभ से किसी को समझ आता है, तो महात्मा बता रहे हैं यहाँ पे.
महात्मा सुदुर्लभ, सुदुर्लभ मतलब आम तरीके से हम नहीं देख सकते। हम अगर हमारे पास आगे पीछे देखेंगे तो बहुत सारे शिव के भक्त हैं, बहुत सारे गणेश जी के भक्त हैं, सरस्वती देवी के भक्त हैं, लक्ष्मी जी के भक्त हैं। तो लेकिन क्यों भगवान बताते हैं भगवत गीता में, जिनको इंद्र तृप्ति करने की बहुत इच्छा है वही शिव जी को या फिर गणेश जी को या फिर लक्ष्मी जी को मुझे पैसा चाहिए या फिर मुझे बहुत बड़ा ज्ञानवान बनना चाहिए, तो सरस्वती देवी को प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी जी को प्रार्थना करते हैं, मुझे बहुत सारी धन चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि हमको कभी भी इंद्र तृप्ति करना होता है तभी हम डेमी गॉड्स के पास जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिशाली है, बुद्धिवान है, वही क्या करता है, भगवान कृष्ण के पास जाता है। तो उनको क्यों बुद्धिशाली बताया गया है, क्योंकि वो जो पाते हैं, जो भगवान से वरदान पाते हैं वो निरंतर रहता है। जो शिव जी से या गणेश जी से जो भी वरदान मिलता है वो ये शरीर के साथ खत्म हो जाता है, उसका इफेक्ट जो है वो निरंतर नहीं रहता है ना। तो जो भगवान कृष्ण को सुप्रीम या फिर सबके सूत्र बांध के और अंडरस्टैंड करके जो भगवान को वर्शिप करता है, भगवान का आराधना करता है, वो महात्मा है। और ऐसा व्यक्ति को देखना भी बहुत सुदुर्लभ है। दुर्लभ मतलब रेयर, बहुत मुश्किल से हमको कोई मिलता है जो भगवान कृष्ण की आराधना करता हो, जो किसी भी इच्छा के बिना, भौतिक इच्छा के बिना भगवान की प्लेजर के लिए, भगवान की खुशी के लिए जो भगवान को आराधना करता हो, ऐसा व्यक्ति बहुत कम ही मिलते हैं, दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, ऐसा बता रहे हैं। बहुत दुर्लभ के बाद अगर कोई भी भगवान का शरण लेता है तो हमको समझना चाहिए कि वो बुद्धिशाली व्यक्ति है। और फिर प्रभुपाद बताते हैं ये तात्पर्य में कि कैसा, व्हाट इज द प्रोसेस, ये किस माध्यम से ये समझा जा सकता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, जो कृष्ण बताते हैं चैप्टर 4 में बताते हैं कृष्ण भगवान कि हमको गुरु की शरणागति लेनी चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हम भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत ये सब कितने भी पढ़ लें, कोई है जो पूरा भगवत गीता रटा करके रखा हुआ है, लेकिन अगर वो भगवत गीता का प्रिंसिपल्स, भगवत गीता के मुताबिक अपना जीवन चला रहा है क्या नहीं, अगर पूछेंगे तो नहीं चला रहा होगा। खाली भगवत गीता को रट्टा किया है, वो भी अच्छी बात है, भगवान का जो बोला हुआ जो शब्द है वो बोलते बोलते भी हमको सुकृति मिलता है। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो हमको भगवत गीता में क्या इंस्ट्रक्शंस कृष्ण भगवान ने दिया है उसमें वैसा हमारा जीवन को हमको चलाना है, वो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हमारे जीवन हमको चलाना है। तो कैसे समझे, भगवत गीता में हम लोग इतने बार पढ़ते हैं लेकिन हमको समझ नहीं आता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि कैसा भगवत गीता का जो सार है, द एसेंस ऑफ भगवत गीता, उसको कैसे समझे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हमको एक बोनाफाइड गुरु जो परंपरा में आते हैं वैसा गुरु को अप्रोच करना चाहिए और उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। कैसे लेनी चाहिए, उनको सेवा करना है और फिर नम्र भाव से उनको प्रश्न करना चाहिए कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, ऐसा पूछना चाहिए। ऐसा नम्र भाव से जब भी हम पूछते हैं तो वो कैसे ज्ञान देते हैं, ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, उनको ज्ञान है पहले से, क्योंकि वो बोनाफाइड परंपरा जो है उसमें आते हैं, तो उनका जो ज्ञान है वो डिसाइपल या फिर शिष्य के हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो नम्र भाव से हमको प्रश्न करना है। चैलेंजिंग स्पिरिट मतलब चैलेंजिंग स्पिरिट से नहीं करना है, वी हैव टू बी हम्बली आस्किंग। तो नम्र भाव से अगर हम प्रश्न करते हैं और ऐसा उत्तम अधिकारी गुरु का सेवा भी करते हैं तो क्या होगा, हमको ये मार्ग जो है जिससे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं,
जो भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने दिया हुआ है वो हमारी समझ में आएगा। तो गुरु कैसे करते हैं? गुरु जो है वो हमारे हृदय में ज्ञान का ज्योत जलाते हैं, राइट। उससे क्या होता है? अंधकार मिटाया जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में भी बताया गया है कि जैसे सूर्य है वो अंधकार को कैसा मिटा देता है ना। रात को बहुत अंधेरा रहता है, हमको पता नहीं चलता है कि क्या क्या कहाँ है, सब अंधेरा दिखता है। लेकिन जब सूर्य उदय होता है सुबह सुबह तो हमको नजर आता है कि क्या क्या कहाँ है, सब चीज अलग अलग है। इस यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे लैपटॉप है, वो सब हमको दिखाई देता है सूर्य की ज्योत से। ऐसा ही और प्रभुपाद अच्छी तरह से ये उदाहरण भी देते हैं कि जो भूखा रहता है वो खाना खाने के बाद उसको किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना होता है कि अभी मेरा भूख मिट गया। वो कैसा खाने से उसका जो भूख है वो उसको एहसास होता है कि मेरा भूख तो चला गया, अभी मैंने अच्छी तरह से खाना खा लिया है। वैसा ही जब हम ज्ञान जो है वो बोनाफाइड गुरु से प्राप्त करते हैं तो हमारे हृदय में हमको पता चलता है कि भगवान कौन है, मैं ये मनुष्य जन्म जो मुझे मिला है इसका क्या उपयोग करना है, भगवान की सेवा कैसा करना है। ऐसा जो ज्ञान है वो हमारे हृदय में उज्ज्वलित होता है। तो हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, या फिर किसी का अप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं हम लोग। हमारी आत्म तृप्ति से हमको पता लग जाता है कि हम सही दिशा में है, हमको सही गुरु मिल गए हैं। उनका इंस्ट्रक्शन को पालन करते करते हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे करके। और फिर बताते हैं कि वो जो वर्ष है ना रेगुलर, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं है माया अधिकार। जो कृष्ण जो है उनका ज्ञान, कृष्णा ये 10.11 और 12 में भी बताते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम। सो हमको क्या करना है? अभी बोनाफाइड गुरु से हमको ज्ञान मिल गया तो हमको क्या करना है? तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम। सो भगवान को हमको प्रेम से भगवान का उपासना करना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तेषाम सतत युक्तानां, हमेशा करना चाहिए। मतलब एक दिन मूड है तो मैंने सेवा किया, दूसरा दिन मूड नहीं है नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको रोज नित्यम का मतलब है रोज करना चाहिए और निरंतर करना चाहिए, राइट। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम मतलब प्यार से, भक्ति से हमको भगवान का सेवा करना चाहिए। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। तो भगवान क्या बोलते हैं? मैं ये ददामि बुद्धि योगम तम, तो जो ज्ञान चाहिए होता है भक्ति मार्ग अपनाने के लिए, वो ज्ञान जो है मैं देता हूँ, राइट। तेषाम सतयुक्तम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। इस ज्ञान से माध्यम से जो व्यक्ति जो है वो भक्ति मार्ग अपनाता है और इस वजह से वो मेरे पास, मेरे धाम वापस चले आता है, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। और फिर नेक्स्ट वर्स में क्या बताते हैं? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमः। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं जो ये ज्ञान का जो दीप है वो भक्त के हृदय में प्रज्वलित करता हूँ। तो इससे क्या होता है? वो भक्त जो है कंफ्यूजन से ऊपर उठ के कैसा भक्ति करना है ऐसा उसको अच्छे से समझ आता है, ऐसा बताते हैं। ये सब पॉइंट्स परपोर्ट से प्रभुपाद जो क्लियरली बता रहे हैं कि हमको पहला स्टेप जो है वो है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो पहले ही बात हमको समझना चाहिए। और प्रभुपाद बता रहे यहाँ पे, कोई तो ये समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर से ऊपर हूँ, मैं ट्रांसेंडेंटल हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन उससे भी ऊपर एक और चीज समझना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा के बीच में फर्क है। One needs to discriminate between the soul and the super soul. आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? प्रभुपाद बताते हैं एक और परपोर्ट में कैसा एक जीवात्मा के हृदय में दो पक्षियां बैठे हैं। एक जो है वो जीवा मतलब जीवात्मा है,
और दूसरा जो है वो परमात्मा है। और जीवात्मा जो है वो बहुत काम करता है, इधर उधर प्रयत्न करता है खुश रहने के लिए। लेकिन परमात्मा जो है वो ऐसे ही देख रहा है जीवात्मा को, कभी ये मेरी ओर देखेगा तो मैं उसको थोड़ा ज्ञान दूं भक्ति सेवा करने के लिए। लेकिन वो इतना बिजी रहता है कि काम करता रहता है खुशी की खोज में। लेकिन कहाँ खोजता है खुशी? ये भौतिक लोग में खुशी को खोजता है, जो कृष्ण भगवान ने बताया है कि दुखालयम और अशाश्वतम है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि पहली बात जो हमको समझना है वो ये है कि शरीर और आत्मा का अंतर हमको समझना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दूसरी बात, आत्मा और परमात्मा के बीच में जो अंतर है वो समझना है, राइट। और फिर तीसरी बात जो भगवान बताते हैं वो है भगवान और मेरा संबंध क्या है, रिलेशनशिप विद गॉड। वो संबंध कैसा हमारे हृदय में समझ आता है, वही हम लोगों ने ये बताया कि कैसे हमको गुरु की शरण लेनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए और नम्र भावना में गुरु से क्वेश्चंस पूछनी चाहिए, क्वेरीज पूछनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी हृदय में ज्ञान को प्रज्वलित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुरु जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि, राइट। गुरु जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होते हैं। तो इसीलिए जो कृष्ण बताते हैं 10.10 और 10.11 में, वही काम गुरु हमारे हृदय में ज्ञान ज्योत को ज्ञान दीप को जला के करते हैं, प्रज्वलित करते हैं, ठीक है। और फिर प्रभुपाद क्या बताते हैं? हाँ, प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्णा जो 2:12 वर्ष में 2.12 वर्ष में कृष्ण बताते हैं, कौन सा वर्ष है ये? न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। वो बोल रहे हैं अर्जुना, तुम और मैं, हम दोनों ने बहुत सारे जन्म लिए हैं, लेकिन तुमको पता नहीं है क्योंकि तुम जीवात्मा हो, तुम्हारे शरीर जो है वो मटेरियल है। तो हम देह त्याग करते हैं तो हमको पता नहीं लगता कि हमारा पिछले जन्म में हम कौन थे। वही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमको पता लगा कि पिछले जन्म में हम पिग या फिर डॉग थे तो हमको प्रॉब्लम हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, अरे मैं ऐसा था क्या पहले। तो भगवान बोलते हैं ना 15.15 में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। जो भगवान जो है हमको ज्ञान भी देते हैं, हमको रिमेम्बरेंस जो हमको याद रखना चाहिए, जो हमारी तरक्की के लिए, हमारी ट्रांसेंडेंटल प्रोग्रेस के लिए हमको जो याद रखना चाहिए। अगर हमको इच्छा है कि हमको तरक्की करना है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो उसके लिए हमको क्या जरूरत है, वो भगवान हमको वो रिमेम्बर करने की शक्ति देते हैं और अपोहनम भी देते हैं। मतलब जो चीज हमको स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करने के लिए जरूरत नहीं है याद रखने की, तो वो उनको बुला भी देते हैं, लाइक कृष्ण मेक अस फॉरगेट। तो भगवान हमको ज्ञान भी देते हैं, याददाश्त भी देते हैं और हमको मतलब फॉरगेटफुलनेस भी देते हैं, ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद। At night we see everything is in darkness, but when the sun comes up, then everything is very clear. तो हम लोग वही हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था, तो कि हम लोग रात के टाइम पे अंधेरा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या, कुछ नहीं दिख रहा होता है। लेकिन जब हमारी अज्ञानता जिसको कंपेयर किया गया है अंधेरा से, अंधेरा डार्कनेस इज कंपेयर्ड टू आवर इग्नोरेंस, जो तमो गुणा रहता है, तो वो ज्ञान दीप जब प्रज्वलित होता है हमारे हृदय में, तभी अज्ञानता जो अंधेरा है, अज्ञानता के रूप में हमारे हृदय में वो चला जाता है। तभी व्यक्ति जो है वो रियल नॉलेज को, मतलब जो सही में ज्ञान है, भगवान तक हमको पहुंचने के लिए जो सही ज्ञान है, वो हमारे हृदय में प्रज्वलित होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक्स्ट 17 पे जाते हैं। तद्बुद्धयस्तत् आत्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकल्मषाः। Translation by Srila Prabhupada की जय। When one's intelligence, mind, faith and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. Purport by Srila Prabhupada की जय। The supreme transcendental truth is Lord Krishna.
The whole Bhagavad Gita centers around the declaration that Krishna is the supreme personality of Godhead. That is a version of all Vedic literature. Paratattva means the supreme reality, who is understood by the knowers of the supreme as Brahman, Paramatma and Bhagavan. Bhagavan, or the supreme personality of Godhead, is the last word in the absolute. There is nothing more than that. The Lord says, Mata parataram na anyat kinchit asti dhananjaya. The impersonal Brahman is also supported by Krishna. Brahmano hi pratishtaham. Therefore, in all ways, Krishna is the supreme reality. One whose mind, intelligence, faith and refuge are always in Krishna, or in other words, one who is fully in Krishna consciousness, is undoubtedly washed clean of all misgivings and is in perfect knowledge in everything concerning transcendence. A Krishna conscious person can thoroughly understand that there is duality, simultaneous identity and individuality in Krishna, and equipped with such transcendental knowledge, one can make steady progress on the path of liberation. So, Bhagavan क्या बताते हैं इस 17th verse में? One's intelligence, mind, faith and refuge are fixed in the supreme. जब हमारी बुद्धि, mind, हमारी मन और फिर श्रद्धा से, faith, श्रद्धा से हम भगवान का शरण लेते हैं, we take refuge in the supreme, मतलब हम भगवान का जो शरण लेते हैं, तब हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है. Our consciousness gets purified. हमारा चित्त शुद्ध होके हम क्या करते हैं? मुक्ति के मार्ग में चल सकते हैं. मुक्ति के मार्ग में चलने का चॉइस करते हैं. धर्म अर्थ काम मोक्ष, राइट? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम. ये धर्म जो है वो भगवान का ही दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको धर्म का पालन करते हुए, वैदिक स्क्रिप्चर्स का पालन करते हुए भी हमारी भौतिक इच्छाओं का पूर्ति करने के लिए हम सोचते रहते हैं. लेकिन हम जब हमारी बुद्धि शुद्धि हो जाता है, हमारे मन जब शुद्धि होता है, हमारी मन का शुद्धिकरण जब हो जाता है, तब हमको पता लगता है कि हम गुरु का शरण भी लेते हैं और हमको गुरु से क्या मिलता है? श्रद्धा मिलता है. थोड़ा श्रद्धा तो हमारे पास रहना चाहिए, तभी हम गुरु से ये क्वेरीज पूछते हैं और फिर गुरु जो है हमारे क्वेरीज को आंसर करके हमारी जो स्पिरिचुअल पाथ है उसको क्लियर करते हैं एक्चुअली गुरु. ठीक है, तो फिर इससे क्या होता है? हमारा चित्त और कॉन्शियसनेस शुद्ध हो जाता है और हम मुक्ति के मार्ग में चलने लगते हैं. राइट? इसमें क्या लिखा है? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. जो भगवान कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. राइट? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है. और 3 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा भी यहाँ पे बताया गया है, जो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान. प्रभुपाद तात्पर्य में अच्छी तरह से बताते हैं कि कैसा भगवान या फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वही हाईएस्ट रियलाइजेशन है. भागवतम में एक वर्ष आता है ना, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते. जो 3 लेवल्स होते हैं भगवान को रियलाइज करने में, वो क्या क्या है? ब्रह्मेति मतलब भगवान से मर्ज हो जाना, मतलब भगवान का जो ज्योति रहता है, इफल्जेंस ऑफ द लॉर्ड, उसमें मर्ज होना. तो हम लोग देखते हैं भगवत गीता में ही देखते हैं कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, ऐसा लिखा है. मतलब कोई हैंकरिंग भी नहीं रहता है, कोई लैमेंटिंग भी नहीं रहता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा इच्छा भी नहीं रहता है, और मुझसे ये खो गया वो खो गया करके लैमेंटेशन भी नहीं रहता है. लेकिन जो भक्ति सेवा में जो आनंद मिलता है, वो आनंद भी वो जगह पे ब्रह्मन रियलाइजेशन में प्राप्त नहीं होता है. और हम जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास है, हम आनंदमय अभ्यासात हैं. क्यों? हम भगवान के अंश हैं. जो भगवान जो है वो सच्चित आनंद है, तो हम भी सच्चित आनंद है. इसीलिए हम लोग ये मटेरियल वर्ल्ड, ये जड़ लोक में भी हम लोग क्या प्रयत्न करते रहते हैं? कैसा खुशी मिलेगा मुझे? मुझे गाने से खुशी मिलता है तो मैं गाती हूँ, मुझे नाचने में खुशी मिलता है तो मैं नाचती हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि फिल्म देखने से मुझे खुशी मिलता है तो मैं वो करती हूँ. इसीलिए तो हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में भी क्या करते हैं? खुशी प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश करते रहते हैं. तो इसीलिए हम लोग जो है आनंदमय अभ्यासात है, प्रैक्टिस करते हैं कि कैसा हमको खुशी प्राप्त होगा.
तो हम लोग ब्रह्मन से मर्ज भी कर लेंगे। अगर वो सिद्धि भी हो गया हमको कि ब्रह्मन से मर्ज भी हो गया, तो फिर आनंद नहीं है। हमको नेदर लैमेंटेशन है ना हैंकरिंग है, लेकिन हमको खुशी भी नहीं मिल रहा है, आनंद भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि आनंद नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आके क्या करते हैं, हॉस्पिटल खोलना या फिर स्कूल खोलना, स्कूल चलाना, ऐसा कुछ काम करके हमको हमारी मन को तृप्ति या फिर खुशी लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि हम इसमें से नीचे गिर जाते हैं। तो दूसरा वाला रियलाइजेशन वो है जो परमात्मा रियलाइजेशन। तो हम लोगों ने पिछले वर्ष में भी चर्चा किया था कि कैसा दो पक्षियां हैं, एक परमात्मा है, एक आत्मा है, एक जीवात्मा है, सोल एंड सुपर सोल जो है हमारे हृदय पे बैठे रहते हैं, है ना। तो फिर परमात्मा रियलाइजेशन में भी हम भगवान को अपने अंदर महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान का सेवा नहीं कर सकते हैं। जब तक भगवान का सेवा नहीं होता है हमारी इंद्रियों से, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, हमारी जो इंद्रियां है उससे भगवान का सेवा जब तक हम लोग नहीं करते हैं, तब तक ये जो आनंद जो है वो हमको प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान हम रियलाइज हो जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, भगवान जो है वो परमात्मा है, मेरे हृदय में स्थित है, वो सब हमको समझ आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं, वो ज्ञान को रख के क्या करने वाले हैं हम लोग? भगवान का अगर सेवा नहीं करते हैं तो ऐसे ही ज्ञान मुद्रा में बैठे रहते हैं, तो हमको आनंद नहीं मिलेगा। और ये जो कलियुगा है उसमें हम लोग मन को नियंत्रित भी नहीं कर सकते हैं एक चीज में। मन तो है इधर उधर भागता रहता है। तो परमात्मा की फॉर्म में, अष्टांग योग में हम परमात्मा के रियलाइजेशन होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन का नियंत्रण नहीं होता है। अगर हो गया भी तो भी हम लोग उसके बाद क्या करेंगे? जो लोग परमात्मा को रियलाइज करते हैं, कोई लोग वहां से उठ के भगवान का रियलाइजेशन भी कर लेते हैं। अगर कोई नहीं करता है तो फिर किसी का भक्त का मर्सी से ही हम लोग यहाँ से उठ के भगवान का रियलाइजेशन पर पहुंच सकते हैं। तो परमात्मा रियलाइजेशन वो ब्रह्मांड से तो अधिक है, लेकिन क्या होता है उसमें भी आनंद नहीं मिलता है पूर्ण तरह से। तो क्या होता है, हम लोग उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तो फिर कहाँ हमको आनंद मिलता है, कहाँ पूर्ण रियलाइजेशन हमको कहाँ मिलता है? वो भगवान फॉर्म में मिलता है। वही प्रभुपाद ये तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो हाईएस्ट रियलाइजेशन होता है वो भगवान के रियलाइजेशन, राइट। ऐश्वर्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान विज्ञान यश्चैव सन्नं भग इति गणः। जो भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो वो 6 क्वालिटीज जो रहता है, राइट, ब्यूटी, वेल्थ, स्ट्रेंथ, नॉलेज, फेम, रेनंसिएशन, उसमें पूर्णत्व से उनके पास रहता है। तो फिर हम भगवान को ऐसा सेवा में, भगवान की सेवा में जब हम हमारी इंद्रियों को एंगेज करते हैं, तभी हमको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। और प्रभुपाद ये तात्पर्य में एक और अच्छी बात बता रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि अचिंत्य अभेद भेद तत्व। ये क्या है अचिंत्य अभेद भेद तत्व? जो हम जीवात्मा है और परमात्मा है, और भगवान जो है, मतलब जीवात्मा और भगवान दोनों ही सच्चित आनंद है। वही हम लोग बता रहे थे कि दोनों ही सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है, लेकिन वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में भगवान में है ये क्वालिटीज। लेकिन वो सत्य, चित्त और आनंद जो है वो मिनिस्क्यूल क्वांटिटी में हमारे पास भी है, क्योंकि हम भगवान की अंश है। तो भगवान को अनलिमिटेड जो है, भगवान को विभू मतलब अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो है वो हमारे अंदर अणु क्वांटिटी में है। इसीलिए हम लोग प्रयत्न करते रहते हैं, मुझे और भी आनंद चाहिए, और भी आनंद चाहिए, बट लेकिन हम लोग गलत तरीके से वो कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो हमारी सिद्धांत बताते हैं वो क्या है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल। हमको समझ नहीं आता है कि एक ही चीज सेम भी हो सकता है और अलग भी कैसे हो सकता है। अगर एक चीज दूसरी चीज से अलग है तो वो कैसा सेम हो सकता है, ऐसा। तो इसमें क्या बता रहे हैं? जीवात्मा और परमात्मा और भगवान जो है वो सेम रहते हैं क्वालिटी में और डिफरेंट रहते हैं क्वांटिटी में। और एग्जांपल देते हैं कि जैसा एक बूंद का पानी, जो ओशन से निकाला हुआ एक बूंद का पानी जो है, उसका क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्ट कंटेंट वगैरह सेम एज ओशन ही रहता है, उसमें अंतर नहीं है। लेकिन जो क्वांटिटी है, हमारा जो एक बूंद का पानी है, जीवात्मा को बता सकते हैं एग्जाम्पल, एक बूंद का पानी, और पूरा ओशन जो है वो भगवान की
भगवान की कंपैरिजन कर सकते हैं। या फिर फायर का जो स्पार्क रहता है, वो पूरा फायर जो है वो भगवान है। और जो फायर का स्पार्क जो है वो अंश जो है वो जीवात्मा को कंपेयर किया गया है ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं, वी आर वन इन क्वालिटी विद गॉड। हमारे जो क्वालिटीज है सत्य चित्त और आनंद, वो इक्वल टू भगवान है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। इसीलिए हम भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम जीवात्मा भी वो बताते हैं भगवत गीता में ना, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र मुह्यति। जो धीर रहता है उसको पता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन मेरा आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकता, है ना। तो ये एक्सप्लेन करके क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि हम सत है, वी आर इटर्नल, और हम चित्त भी है। हमको भी ज्ञान प्राप्त करने की बहुत कोशिश लगी रहती है। कोई तो इतना पढ़ता है मटेरियल नॉलेज में भी, कोई भी ज्ञानवान रहता है इवन मटेरियल टर्म्स में भी, वो सबको इम्प्रेस भी करता है ना। तो हमको ज्ञान भी प्राप्त करना है और फिर आनंद, वी आर इटर्नली प्लेजर सीकिंग सोल्स, हमको हमेशा खुशी चाहिए होता है। तो वो सब हमारे भी है, हमारे अंदर में भी है, क्योंकि हम भगवान के अंश है। वो हमारे अंदर थोड़ा क्वांटिटी में है लेकिन भगवान में पूर्णत्वम से है वो क्वालिटीज। वो हमको समझना चाहिए कि हम लोग भगवान के अंश है। और भगवान जैसा प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे, मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मता परतरम, मैं यहाँ पे सब कुछ मैं ही हूँ, और जो जीवात्मा है वो मेरा अंश है। तो इसीलिए मेरा क्वालिटी सब जीवात्मा में भी है, लेकिन भगवान को जो क्वालिटीज है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। अनलिमिटेड मतलब इनफाइनेट में है, और वेरी लिमिटेड ड्रॉप क्वांटिटी में जीवात्मा में भी है, ऐसा बता रहे। अगर ये ज्ञान हमको प्राप्त हो गया तो हम लोग द लास्ट स्नेयर ऑफ माया से बच जाते हैं। व्हाट इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया? लास्ट स्नेयर ऑफ माया क्या है? कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसा ही सोचते हैं। क्योंकि जो मायावादी रहते हैं वो पहला क्या करते हैं, मुझे ब्रह्म ज्योति में मर्ज होना है, क्योंकि उनको फॉर्म नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो फॉर्म हमारे पास है ये दुखालयम, मतलब बहुत हमको दुख देता है। बिकॉज ऑफ दिस बॉडी वी सफर अ लॉट, है ना। तो वो लोग निखारते हैं, हमको शरीर नहीं चाहिए। जब मैं व्हेन आई बिकम स्पिरिचुअल, मुझे शरीर ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुख का कारण है। ऐसे सोचते हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या बताते हैं, लास्ट स्नेयर क्या होता है? भगवान बनना चाहते हैं। हाँ, हम लोग ये सब करते हैं जो वैदिक लिटरेचर्स में दिया होता है, ये भगवद गीता सब पढ़ते हैं, सब ज्ञान सब हो जाता है हमको, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, मुझे भगवान बनना है। क्योंकि हमको ये बताने लगा है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे सेवा करने में भी मुझे एक्चुअल आनंद मिल सकता है। तो हम क्या सोचते हैं कि भगवान सच्चित आनंद है तो मैं भी भगवान बन जाऊंगा, तो ही मुझे आनंद प्राप्त हो सकता है। ऐसा मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है। तो हम लोग ये चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ ये अचिंत्य अभेद भेद तत्व, इसको अच्छी तरह से समझते हैं तो ही हम लोग स्टडी में ये मुक्त के मार्ग को अपना सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद ये तात्पर्य में। ठीक है, क्या पॉइंट्स है इसमें? हाँ, तो वही बता रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान का अंतरंग शक्ति को हम सेवा कर सकते हैं, या फिर भगवान का मोह माया शक्ति जो बहिरंग शक्ति है उनको सेवा कर सकते हैं। हमारे पास वो फ्री विल है, स्वतंत्रता दिया हुआ है, क्योंकि हम भगवान के अंश है। भगवान है स्वराट, भगवान है सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, तो वो स्वतंत्रता थोड़ी क्वांटिटी में हमारे पास भी है। तो हम वो फ्री विल को सही तरह से उपयोग करके ये समझ के कि मैं भगवान के अंश हूँ और मुझे खुशी जो है कैसा मिल सकता है, भगवान की सेवा करने से ही मिल सकता है। ये अच्छी तरह से समझने के बाद हम भगवान का सेवा करेंगे तो हम मुक्ति के मार्ग में
जाएंगे। और प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से बताते हैं किसी और परपोर्ट में कि मुक्ति हित्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही। मुक्ति का असली मतलब क्या है? ये नहीं है कि भगवान के साथ मिल जाना, ऐसा नहीं है। इफल्जेंस में मिल जाएंगे तो भी हमको नीचे उतरना है, हम लोगों ने डिस्कस किया था वो, क्योंकि आनंद नहीं है वहां पे। अपना अस्तित्व को बनाए रखते हुए जब हम भगवान की सेवा करने की कोशिश करते हैं, वही असली मुक्ति का मार्ग है। जब उसमें हम सफल हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तभी हमको कृष्ण प्रेम का प्राप्ति हो गया। क्योंकि भगवान प्रसन्न होके अपने करुणा, अपनी मर्जी से क्या देते हैं हमको? कृष्ण प्रेम देते हैं। तभी हम भगवान का सेवा प्रेम से करेंगे। अभी कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे गुरु ने हमको ये आदेश दिया है कि चांट करना है, कि एकादशी पालन करना है, रेगुलेटर प्रिंसिपल्स को पालन करना है। ये सब हम कैसा साधना भक्ति के तौर पे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करते करते जब हम भगवान को भगवान से हमारी प्रेम जागृत होती है, तभी हम रागानुगा लेवल पे भक्ति करेंगे। हम चाहेंगे, हृदय पूर्वक हम चाहेंगे कि हम मुझे भगवान का सेवा करना है। ठीक है, फिर हम लोग 18th वर्ष में जाएंगे, ये लास्ट वर्ष है आज के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वभाके च पंडिता समदर्शिनः। ठीक है, अभी स्क्रीन में आया है, एक और बार पढ़ते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है ना, तो कुछ मिस इंटरप्रिटेशन, अगर मैं कुछ गलत भी हिंदी में बोल रही हूँ तो आपको समझ आएगा। ऐसा तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं कुछ में हिंदी में गलत बोल रही हूँ तो, है ना। So translation and purport by Srila Prabhupada की जय। The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and a gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog-eater. A Krishna-conscious person does not make any distinction between species or castes. The brahmana and the outcast may be different from the social point of view. Or a dog, a cow, and an elephant may be different from the point of view of species. But these differences of the body are meaningless from the viewpoint of a learned transcendentalist. This is due to their relationship to the Supreme. For the Supreme Lord, by his plenary portion as Paramatma, is present in everyone's heart. Such an understanding of the Supreme is real knowledge. As far as the bodies are concerned, in different castes or different species of life, the Lord is equally kind to everyone because he treats every living being as a friend, yet maintains himself as Paramatma regardless of the circumstances of the living entities. The Lord as Paramatma is present both in the outcast and in the Brahmana. Although the body of a Brahmana and that of an outcast are not the same, the bodies are material productions of different modes of material nature. The soul and the supersoul within the body are of the same spiritual quality. The similarity in the quality of the soul and the supersoul, however, does not make them equal in quantity, for the individual soul is present only in that particular body, whereas a Paramatma is present in each and every body. A Krishna-conscious person has full knowledge of this, and therefore is truly learned and has equal vision. The similar characteristics of the soul and the supersoul are that they are both conscious, they are eternal, and they are blissful. But the difference is that the individual soul is conscious within the limited jurisdiction of the body, whereas the supersoul is conscious of all bodies. The supersoul is present in all bodies without distinction. So, इस वर्ष में मेन पॉइंट क्या बताया गया है? The humble sage by virtue of true knowledge, जो एक्चुअली ज्ञानी जो रहते हैं, जो सही में ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं, वो एक ब्राह्मणा में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ता में, और जो कुत्ता खाने वाला रहता है चंडाला, उन सब में डिफरेंशिएट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में सभी जीवात्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, मौजूद रहते हैं। जो ब्राह्मणा है या फिर एक कौ है,
ना, जो भी हमारी स्पीशीज में स्पीशीज है, जलजान अवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति, तो 9 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, ऐसा जो भी हमारी जो भी योनि में हम आए हैं, अगर कौ है, एलिफेंट है, डॉग है, किसी भी योनि में हम है, तो भगवान जो है हमारी हृदय में परमात्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ आते हैं। इसीलिए जो सही में ज्ञान प्राप्त किया है वो किसी का शरीर से देख के उनमें अंतर नहीं देखता है। जैसा भगवान जो है वो सबके इक्वली काइंड टू एवरीवन, जैसा भगवान जो है वो सबसे प्रेम करते हैं, सबके साथ सबको, आई मीन काइंड टू एवरीवन, वैसा भक्त भी जो है वो भगवान के जैसा ही सबको देखते हैं। कैसा भगवान जो है वो सबका सुहृदाम सर्वभूतानाम 5.29 में कृष्ण बताते हैं, सुहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो भगवान है वो वही हमारा सुप्रीम फ्रेंड है और बेनिफैक्टर है। और अगर हम ब्राह्मणा के बॉडी में है या फिर चंडाला के बॉडी में है, तो भी जो ये जो डिफरेंट शरीर हम लोग प्राप्त करते हैं वो हमारी गुणा और कर्म के हिसाब से हमको मिलता है। जो जैसे भी हमने कर्म किया है वैसा हमको शरीर मिलता है। लेकिन जो भी शरीर हो, भगवान जो परमात्मा के रूप में वो शरीर में हमारे साथ आते हैं। इससे क्या पता चलता है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम जो भी किया है, हम लोग जो भी कुकर्म करते हैं, तभी भी भगवान अपने दया स्वरूप में हमारे साथ ही आते हैं। देखते रहते हैं कि कभी ये जीव जो है वो मेरे ही विल टर्न टुवर्ड्स मी, तो मैं उसको सही मार्ग दिखा सकता हूँ, है ना। और फिर प्रॉपर ऑल्सो बताते हैं यहाँ पे कि कैसे सोल और सुपर सोल, ये कॉन्शियस भी है, इटर्नल भी है और ब्लिसफुल भी है। क्या है? सत, चित और आनंद। ये हम लोगों ने इन डिटेल्स डिस्कस किया था प्रीवियस वर्स में, है ना। तो भगवान भी सच्चित आनंद है लेकिन अनलिमिटेड क्वांटिटी में, और हम जो है हम भी सच्चित आनंद है लेकिन मिनिस्क्यूल क्वांटिटी में। दैट इज ओनली डिफरेंस इन डिफरेंस इज देयर इन ओनली इन क्वांटिटी, whereas in quality there is no difference। हम लोगों ने उदाहरण भी देखा था जैसा कि ओशन ऑफ वाटर और एक बूंद का पानी, और हम लोगों ने फायर स्पार्क भी देखा था, वो एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, है ना। सो चैतन्य महाप्रभु ये अचिंत्य अभेद भेद तत्व, मतलब भेद भी है और अभेद भी है। भेद मतलब डिफरेंस, राइट। भेद इसमें है, क्वांटिटी में भेद है। अभेद किसमें है? देयर इज नो डिफरेंस इन क्वांटिटी। ओके, तो फिर और क्या बता रहे हैं प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं, हाँ, हम दोनों, भगवान और हम जीवात्मा, दोनों ही सच्चित आनंद है, लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। वो एक वर्ष में, भागवतम में एक वर्ष में बहुत अच्छी तरह से ये बताया गया है। क्या बताया गया है? नित्यो नित्यानाम चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नित्यो नित्यानाम, भगवान भी नित्य है, हम भी नित्य है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा जो है उसका मृत्यु नहीं होता है, राइट। न जायतो मृत्येव कदाचिन नयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब शरीर का नष्ट होता है तभी आत्मा का नष्ट नहीं होता है ना। ये वर्ष में कृष्ण बता रहे हैं। तो हम लोग ये वर्ष में क्या सीखते हैं? नित्यो नित्यानाम, हम भी नित्य है, भगवान भी नित्य है। चेतनानाम, हम भी कॉन्शियस है, हमारी चित्त में भी कॉन्शियसनेस है, इसीलिए हम लोग इधर उधर जा रहे हैं ना। जो सोल जो है वो बॉडी से निकल जाता है तो हम क्या बोलते हैं? ये शरीर छोड़ के चले गए, राइट। कौन चला गया? जो जीवात्मा है वो चले गए। उसके बाद वो शरीर जो लेटा ही रहता है ना, वो उठ के कुछ काम नहीं कर सकता है। तो जो कॉन्शियसनेस, वो चित्त जो है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द जीवा में भी है और भगवान में भी है। लेकिन अंतर क्या है? नित्यो नित्यानाम चेतनानाम तक ठीक है, हम दोनों सेम है, भगवान और जीवात्मा। लेकिन एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक जो है उसमें जो भगवान जो है वही बाकी सब जीवात्मा का ख्याल रखते हैं, मेंटेन करते हैं। एको बहुनाम, एक ही जो है वो विदधाति कामान, बाकी सब जीवात्मा को मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, अनिलिट करते हैं। फिर से हमारे गुण और कर्म के हिसाब से फिर से हम लोग नया शरीर जो भी है हमारे, वो जो मरने के टाइम में हमारे जो थॉट रहते हैं, जो क्या बेसिस पे होता है, हम लोग जिंदगी पूरा किस चीज पे ध्यान रखते हैं, उसके हिसाब से हमको
नेक्स्ट शरीर मिलता है। लेकिन भगवान जो है वो हमको मेंटेन करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। और भगवान और हम दोनों में यही फर्क है, राइट। वो मेंटेनर है और हम लोग जो है वो मेंटेन्ड बाय द लॉर्ड। तो वही, हाँ वही बता रहे हैं भगवान यहाँ पे कि हम लोग भगवान के अंश है, राइट। वी आर मिनिस्क्यूल, वेयर एज भगवान इज विभु, और वी आर अणु। अणु मीन्स मिनिस्क्यूल पोर्शन एंड विभु मीन्स ही इज अनलिमिटेड। ओके, देन और क्या बता रहे हैं प्रभुपाद ये पॉरपॉट में? Yeah, I think, yeah, that's what is covered by Prabhupada. Prabhupada क्या बता रहे हैं? Similar characteristics of the soul and the super soul are that they are both eternally conscious, eternal and blissful. But what is the difference? अंतर क्या है? ये जो इंडिविजुअल सोल है, हमारे आत्मा जो है वो, मुझे मेरी शरीर में क्या हो रहा है वही मुझे पता लगता है ना। मुझे पानी पीना है, मुझे भूख लग रहा है, या फिर मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये काम करना है, वो सब मेरी जीवात्मा को पता है, क्योंकि मेरा जीवात्मा जो है, आत्मा जो है वो ये शरीर में है। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान जो परमात्मा के रूप में सभी जीवात्मा के साथ हैं। तो जो भी जीवात्मा क्यों कोई भी इच्छा रखते हैं, तो भगवान को सब पता चलता है, क्योंकि भगवान कुछ अंतर के बगैर, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, भगवान जो है वो सभी जीवात्मा के अंदर मौजूद है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, ऐसा बता रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज का है अचिंत्य भेद भेद तत्व, जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हम लोग भगवान से इक्वल है क्वालिटी में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, लेकिन भिन्न है और डिफरेंट है कैसे? क्वांटिटी में। भगवान विभु है, हम अनु है। और फिर संबंध, अभिधेय और प्रयोजना ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अचिंत्य भेद भेद तत्व समझने के बाद इमीडिएटली हमको ये पता चलता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान जो है वो विभु है, और मैं ये मनुष्य शरीर में मेरा काम क्या है? भगवान का सेवा करने में ही मुझे आनंद प्राप्त हो सकता है। ये ब्रह्मन रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन में मुझे आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। और जैसे कि जीवात्मा जो है हमेशा आनंद लेने की कोशिश में लगा रहता है, जो आनंद कैसा मिलता है? ये जड़ उलग से नहीं मिलता है ना। क्योंकि हम लोग दुखालयम और अशाश्वतम जो लेबल किया हुआ है भगवान, तो हमको इस मटेरियल वर्ल्ड से हमको वो आनंद नहीं मिल सकता है। कैसा मिल सकता है वो आनंद? ऋषिकेश सेवनम, भगवान को सेवा का, ये इंद्रियों से भगवान का हम सेवा करेंगे तो भगवान की कृपा से हम भगवान की धाम वापस जाएंगे। और वहां पे भी क्या करेंगे हम लोग? रागानुगा भक्ति, मतलब हमारी इच्छा से स्पॉन्टेनियसली हम भगवान का सेवा करेंगे, और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हम कोई भी काम करेंगे। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आज की 3 वर्सेस में। तो कुछ गलती हो गया है हिंदी में या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग में, तो मुझे माफ कर दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रही है? यस यस माता जी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लेक्चर था आपका, और बहुत सारे जो पॉइंट्स थे। फर्स्ट थिंग, आपका हिंदी बहुत अच्छा है माता जी, इट्स वेरी नाइस। प्रभु आप मुझे उत्साहित या फिर एनकरेज करने के लिए आप बोल रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ गलती हो गया है मेरा, मतलब मेरा मीनिंग में, तो आप प्लीज बेझिझक करेक्ट कर सकते हैं प्रभु। थोड़ा, क्योंकि सबका भी अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं होना चाहिए ना, इसलिए। नो माता जी, वॉट एवर आई हर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका हिंदी भी अच्छा था। इट वाज वेरी गुड। बहुत एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग मैं खुद आपका मतलब सुनना चाह रहा था बहुत दिनों से, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जब आपको देखा था आई जस्ट हर्ड स्मॉल पोर्शन, एंड मैं उसके बाद सुन नहीं पाया। तो आज स्पेशली मैं आज जल्दी आया था मंदिर से सेवा करके, मैं बोला आज माता जी का क्लास है तो मुझे सुनना है। एंड यू रियली प्रेजेंटेड द टॉपिक, जो 3 श्लोक था बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया माता जी। जैसे
नॉलेज जो है वो कैसे अज्ञान को हमारे भगाता है। दिस वाज कनेक्टेड टू प्रभुपाद इज कनेक्टेड टू डेमीगॉड वर्शिप। डेमीगॉड वर्शिप कैसे जो है जो अल्प जो फल मिलता है उसके पीछे लोग भागते हैं, इसीलिए वो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की कृष्ण की पूजा नहीं करते। तो वो भी एक प्रकार का अज्ञान है। दिस इज व्हाट आई रियलाइज बिकॉज दे आर इन इग्नोरेंस, इसीलिए वो देवी देवता के पास। अगर उनको ज्ञान होगा तो वो कभी जो है वो भगवान कृष्ण को छोड़ेंगे ही नहीं, बिकॉज उनको पता है ही इज सुप्रीम, तो ऑटोमेटिकली सब उनसे ही मिलना है मुझे। तो दिस इज वन वेरी नाइस पॉइंट आई गॉट फ्रॉम योर द मैसेज व्हाट यू सेड। और जैसे तद विधि प्रणिपाते ना, ये भी जो आपने श्लोक कोट किया माता, दैट इज आल्सो वेरी नाइस कि हम लोगों को सेवा करना है और फिर परिप्रश्न करना है हम लोगों को, या व्हाटएवर, मतलब तो द सेवा बहुत, सेवा जो इम्पोर्टेंट है, जो पार्ट है सेवा का जो पार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई जस्ट वांट टू ब्रीफली, आई थिंक यू मस्ट आल्सो बी बिजी। आज मैं जब मंदिर गया तो मधुसूदन विष्णु प्रभु जी का क्लास था, उन्होंने सारा जो इम्पोर्टेंस था वो सेवा पे ही था कि सेवा हमको करना है। एंड वंस वी डू सेवा, फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं कि आप हम गुरु महाराज अब हम पे कृपा करो या महाराज अब पे कृपा करो। जनरली लोग बोलते हैं कि महाराज अब हम पे कृपा करो, लेकिन दैट इज चीटिंग। आपको पहले सेवा करना है, आप कुछ सेवा करो एंड देन नो नीड टू आस्क ऑल्सो, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर वो कृपा हो जाता है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। नरोत्तम दास ठाकुर जो उनके गुरु थे लोकनाथ गोस्वामी, तो वो जब सुबह शौच के लिए जाते थे तो डेली वो जाके क्लीन करते थे। तो ही वाज वंडरिंग कि ये अपने आप कैसे साफ हो रहा है। तो एक दिन छुप के बैठा और उन्होंने देखा, तो ही सॉ नरोत्तम दास ठाकुर इज क्लीनिंग ऑल द प्लेस। तभी उनको रियलाइज हुआ। और उन्होंने पूछा भी क्या बात है, तो बोलता है गुरु महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। बट स्टिल ही वाज नॉट गिविंग। बोला नहीं नहीं, मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, आई कैन नॉट गिव इनिशिएशन टू एनीबॉडी। फिर नेक्स्ट उसी रात को चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आते हैं, बोले तुम खाली ये एक आदमी को इसको दीक्षा दे दो, बाकी किसी को मत देना। सो द होल पॉइंट वाज कि सर्विस टू वैष्णवस to guru is very very important. Just wanted to add this to whatever message you get, Mataji. And very very wonderful, Mataji, the way you present the shlokas you quote, I really like it. Thank you very much, Mataji. Hare Krishna. Dandavat pranam. थैंक यू सो मच प्रभु। आज नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस भी है, तो हाँ, तो हम उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं कि जो सेवा वृत्ति भाव जो है वो हमारे में आए, और भोग वृत्ति जो भाव है, मतलब एक्सप्लॉइटिंग द मटेरियल नेचर, सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो भाव है, वो हमारे हृदय से निकल जाए, और उसके बदले में सेवा वृत्ति जो भाव है, जो भगवान को और हमारे गुरु को सर्व, सैटिस्फाई एंड प्लीज। राधेश्याम प्रभु बताते हैं, let our only desire be to serve, satisfy and please our spiritual master, and in this way let us serve, satisfy and please the supreme lord. And how can we do that? ऐसा प्रभु बता रहे थे कि सुबह सुबह चांटिंग करके मिनिमम 16 राउंड्स जब हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो हम भगवान को प्रायोरिटाइज करते हैं। when we prioritize the lord, then the lord will prioritize us in giving his mercy. प्रभु आप ये संक्षिप्त में आप हिंदी में बता देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे सर्व, सेटिस्फाई, प्लीज वो सब हिंदी में उतना अच्छी तरह से आ नहीं रहा है वर्ड्स एग्जैक्टली। लेकिन राधेश्याम प्रभु बहुत अच्छे से बता रहे थे कि मैं भी मेडिटेट कर रही थी सुबह सुबह आज जो नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, कि बता रहे हैं कि कैसा वो लोकनाथ स्वामी महाराज का when he used to finish his morning duties, he used to go and clean up the place with his own hands. And in this way he pleased Lokanath Goswami Maharaj, and the person who decided that he will not give initiation, उन्होंने तैयार करके रखा था कि मैं एक भी शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर का सैक्रिफाइस और उनका हम्बल स्पिरिट और उनका सर्विस एटीट्यूड देख के महाराज ने खाली नरोत्तम दास ठाकुर को, he had only one disciple, he did not make any other disciple. So in this way, when the spiritual master is pleased with the disciple, then blessings automatically flow to the disciple, and then the disciple need not ask for blessings, right? So automatically the blessings will flow from the spiritual master, and the disciple will be able to make advancement in spiritual life. Right? And all starts with the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, which is the Yuga Dharma for this age of Kali.
and I also do service. Service is very important, like how Narottam Das Thakur was part of the trio, right? जो श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य के साथ जो the first book distribution movement was started by these trio under the guidance of Sri Jiva Goswami. They pleased their guru, they pleased their spiritual master, the Siksha Guru, and in this way they all attained their perfection of life. So इसलिए आज का दिन हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी जो इच्छा है वो खाली ऐसी ही इच्छा रखें हम लोग कि हम गुरु का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके गुरु को सर्व, सेटिस्फाई और प्लीज करें. वो प्रभु जी बहुत अच्छे से बता रहे थे कि सेवा करने में यू कैन जस्ट सैटिस्फाई समबडी, मतलब यू जस्ट मीट द रिक्वायरमेंट्स, बट यू गो अहेड एंड you please that person so much that the person profusely gives his heartfelt blessings like that. So बस इतना ही मुझे शेयर करना था कि आपने अभी बताया नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, तो मुझे और आज ऑल्सो कृष्ण मधुर उत्सव भी है, जो रासलीला होता है पौर्णमी के दिवस में, वो भी आज है. जो भक्त लोग रात को खीर बना के बाहर भी रख सकते हैं कि आई मीन बोला जाता है द डिवाइन कपल एज दे एंगेज इन देयर रासलीला, द रास डांस विद द गोपीज, Krishna will honor the kheer, and then we can honor the prasadam tomorrow. That is also specified for today. So we can pray to Narottam Das Thakur to give us his blessings, that may we also get a minuscule of the attitude of seva vriti that he possessed, by which he pleased his spiritual master, that we may also please our spiritual master, and in this way attain the perfection of the human form of life, which is Krishna Prema, in this lifetime itself. So let that be our prayer today. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, श्रील प्रभुपाद की जय. प्रभु आप संक्षिप्त में हिंदी में समराइज करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, या फिर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं. 12:45 को मेरा एक दूसरा क्लास है, तो another 6-7 minutes we can take to either questions or we can just summarize in Hindi, Prabhu, as per what you desire. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Mataji, very wonderfully you explained. I think everybody understood. So better अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं. I'm sure there will be some questions, some doubts. ठीक है. तो क्विकली माता जी के पास सिर्फ 5 मिनट है, तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, टीका टिप्पणी है, तो हम लोग क्विकली हम लोग लेते हैं. If somebody has, please raise your hands. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Looks like no doubts माता जी. It was beautifully explained. आपने बहुत अच्छे से explain किया. तो मैंने क्लास में सुना है कि अगर क्लास के एंड में कुछ क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसा सब सर के ऊपर चला गया होगा, मतलब क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया है, या फिर इतना अच्छा था कि सबको सब समझ में आ गया. आई होप एंड प्रे इट इज द सेकंड ऑप्शन. और डिवोटीज आर वेरी मर्सीफुल, दे आर बीइंग वेरी काइंड. जीवा पावन गौर प्रभु हाथ उठा रहे हैं. क्या प्रभु जी बताइए, कुछ गलती है तो प्लीज फ्रैंकली बता दीजिए प्रभु, क्योंकि अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर हिंदी में मैंने कुछ गलत शब्द यूज किया है या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग को ये किया है तो सबको क्लैरिफाई कर देंगे ऐसे हिसाब से. या यस प्रभु. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. थैंक यू माता जी. धन्यवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया माता जी. और माता जी आज के जो ये सेशन था उसमें माता जी महत्वपूर्ण बात आपने इतनी अच्छी हमें ये जो ये आत्म साक्षात्कार के बारे में आपने समझाया, ब्राह्मण, परमात्मा और ये भगवान के बारे में, कि जैसे भगवान के बारे में ही श्रवण करके हम जो है आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और हमारी जो चेतना है वो भगवान की सेवा में, और जैसे वो गुरु महाराज के पास शरणागत करके हम उनको श्रवण कर सके. इतना अच्छा माता जी आपसे श्रवण करने मिला. माता जी हिंदी में आपने बहुत ही अच्छी तरह, जैसे इंग्लिश में आप इतना ऊर्जा से प्रवचन करते हैं वैसे ही हिंदी में था और आपने इतना अच्छा समझाया माता जी. तो मुझे भी पूरी ये निश्चय, ये विश्वास है कि सबको समझ में आया होगा माता जी.
थैंक यू माता जी, आपने बहुत सुंदर समझाया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हिंदी में थोड़ा बात करने का मौका दिया, तो मैंने भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कोशिश किया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जया दास प्रभु। हरे कृष्णा माता थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। बहुत अच्छा क्लास था। आपने इंग्लिश में भी मैंने आपके क्लासेस जी पावन प्रभु जी से पूछ के ज्वाइन किए थे। आपने मुझे मैसेज भेजा था कि आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं, और आपने जो भी मैसेज भेजे थे ना माता जी, मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया, आपके क्लासेस अटेंड किए, और आज भी आपकी हिंदी वाली क्लास अटेंड करके भी बहुत अच्छा लगा। सबको आप पढ़वाती हैं भगवत गीता, मतलब भागवतम का एक एक श्लोक मैंने आपको क्लास अटेंड किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा माता जी, दिल से, क्योंकि कुछ ऐसी-ऐसी हम चीज़ें जो हम मतलब हर हर एक उसमें हम अलग-अलग नई-नई चीज़ें सीखते हैं। उसमें आपके क्लास में आपने सिखाया नव यौवनम, आपकी वो वाली क्लास मैंने अटेंड की थी आफ्टरनून की, जिसमें आपने बताया था कि कृष्णा हम सोचते हैं कि मैं सोचती थी हर दिन नया कैसे होता है, एवरी डे इज़ नॉट सेम। तो उस क्लास का मुझे याद है, आपका पॉइंट आपने बताया था कि बिकॉज़ कृष्णा डज़न्ट ही लाइक्स एडवेंचर एंड नव यौवनम है भगवान। हर दिन अलग लीला करते हैं, लीलाधारी है भगवान। अमुक लीला प्रभु जी बोलते हैं भगवान लीलाधारी है। और तो मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है कि हर दिन अलग है, एवरी डे इज़ नॉट सेम लाइक द अदर डे। तो उसमें आपने एक पॉइंट बोला था, व्हेन यू आर टेकिंग इंग्लिश क्लास, दैट कृष्णा इज नव यौवनम। नाउ देन आई अंडरस्टूड द मिस्ट्री दैट हाउ वन डे इज नॉट सिमिलर टू अनदर डे, बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग लीलाज, फ्रेश लीलाज एवरी टाइम। तो माता जी वो याद था जो आपके क्लासों में से माता जी। तो थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लासें भी अटेंड करके माता जी। थैंक यू। आपका दर्शन आज भी मिला, बहुत खुशी हुई माता जी। आज से आप आते रहिए माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। बहुत धन्यवाद माता जी एनकरेज करने के लिए। जब भी मौका मिलता है, जीव पावन गौर प्रभु मौका देते हैं, तो खुशी होगी कि आप सबका एसोसिएशन में आके कुछ शेयर करने का। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तुलसी जी, मैं सिर्फ थैंक निमित्त यू बन माता। हूँ, यहाँ पे सब भक्तों का कृपा है, सब भक्तों की ऐसी इच्छा है, इसके लिए सब भक्त ऐसे वो लोग बताते हैं, तो मैं सिर्फ निमित्त हूँ माता जी। मेरा कोई इसमें योग्यता नहीं है माता जी। हमें आपका ये संग मिलता है और ये इतना अच्छा सीखने मिलता है माता जी, ये हमारा भाग्य है माता जी। आपको भी थैंक यू, और धन्यवाद प्रभु। गोपीमन प्रभु जी और सभी भक्तों को भी थैंक यू। जी जी, यस माता जी, आपको लेट होता होगा, सॉरी माता जी। हरे कृष्णा। यस या नहीं माता प्रभु, जी हैज टू आप लीव, लाइक उनका 45। आपका दूसरा क्लास है ना माता जी? हाँ 12:45 को है, तो हम लोग ये यहाँ पे एंड कर सकते हैं प्रभु। यस यस माता जी, या ओके, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच डियर डिवोटीज। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। जगत श्रील प्रभुपाद की जय। नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सवा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच डियर डिवोटीज, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हर ग्रेस I take your भवानी सखी। permission to थैंक यू exit. Hari Bol. धन्यवाद प्रणाम।